السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو حدیث کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، اور جو کچھ بھی اللہ سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے سے، بولنے سے، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو بھی اللہ کے باتوں کو، دین کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دین اور دنیا میں خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میں ایک حدیث لے کر آئی ہوں، انشاءاللہ حدیث سنیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو نماز کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی نماز وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے وہ 27 درجے زیادہ ہوتی ہے، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے 10واں ثواب کا حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض کے لیے 9 حصہ، بعض کے لیے 8واں حصہ، 7واں، 6واں، 5واں اور 1/4 تہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درجے کا خشوع و اخلاص نماز میں ہوتا ہے، اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھا سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض لوگوں کو بالکل بھی نہیں ملتا۔ اس قابل نہیں ہوتے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ پہنچنے والے خشوع ہے، سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ پوری جماعت میں ایک شخص کی بھی خشوع سے نماز نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے آدمی کا خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ جو نماز میں کھڑتے ہیں تو پورے آداب اور وقار کے ساتھ کھڑنا۔ نماز میں کھڑ جانے کے بعد پوری دنیا کا خیال آ جاتا ہے، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، وہ حساب کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، تو نماز میں دھیان نہیں رہتا، اور نماز میں کتنی رکعتیں ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتا، نماز میں کیا کر رہی ہیں وہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اس لیے نماز میں جانے سے پہلے سب سے پہلے اطمینان سے، سکون سے وضو بنا کر ہمیں تھوڑی دیر سکون سے رکھے پہلے نیت کرنا، یا اللہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ سب سے پہلے ہمیں اخلاص لا لینا، جو بھی ہمیں کر رہی سب سے پہلے ہمارے دل میں اخلاص، صرف اللہ سے راض ہو جائے، تو ہمیں بولنے کے بعد جہاں پہ نماز پڑھتی وہاں پر جا کر کھڑے ہونا ہے اور استغفار پڑھنا، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، توبہ کر کے اور اللہ کلمہ پڑھ لے کے کھڑنا۔ کیوں بولے تو ہم نے معلوم ہی نہیں، تھوڑی دیر میں ہمارا ایمان دور ہو جاتا ہمارے سے، تو ہمارا ایمان دور ہوگا تو ہمیں ایمان نہیں تو ہمیں کیا رہتی، ہمیں مسلمان نام کو مسلمان رہتی۔ اسی لیے ہمیں جب ہم کھڑ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہمیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دھیان اور خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے دین میں۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہے، اور اللہ کے پاس حساب ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ اس کے لیے حجت ہوتا ہے، نہ کوئی حساب ہوتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھیں گے۔ جو بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتی، اللہ اس کے چہرے کو نور سے منور کرتی، اور ان کے گھر میں رزق روٹی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر زمین آسمان آنے والی آفتوں سے حفاظت کرتی، اور ان کی رزق میں برکت دیتی، اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ بہت بہترین کلمہ والی موت دیتی۔
जो नमाज नहीं पढ़ते उनके घर में बरकत नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहता, उनके घरों में सुकून नहीं रहता। ज़मीन आसमान आने वाली आफतें आती और उनके चेहरे से सुलह का नूर हटाया जाता है। और मौत के वक्त के अजाब ही, मौत के वक्त जब कामिल ईमान वाले इंतकाल होती तो मैं कल के हदीस के में सुना कहूँ कि ईमान वाले की मौत कैसी होती है बोल के। जो बेईमान वाले होती सरासरी तौर पे नमाज पढ़ रही, यानी नमाज को टाल का बाद में करके पढ़ रही, यानी तो दूसरे तो नमाज ही नहीं पढ़ रही, अल्लाह हम सब की इबादत करे। तो सबसे पहले उसका मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते आते ही अल्लाह ताला बोलती जाओ उस जालिम की रूह ले लेके आओ जो मेरा नाफरमा बरदार था। तो फरिश्ते आती सब मस्जिदा में जाकर सबसे पहले पूछती मर्द हजरात को, इन्हों कहाँ नमाज पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, सब जगह पूछती थी। वो मस्जिद में पूछती, यहाँ पूछती, पूरा पूछ ले को घर का न्याय तक का शैतान जो है उनके पर घुटने जमाए बैठे रहता है, दूसरे की शक्ल में आते रहता है, उसे शिद्दत की तकलीफ होती रहती है, अल्लाह हिफाजत करे। वैसी शिद्दत की तकलीफ के टेम्पो कभी माँ की सूरत में, कभी बहन की सूरत में, कभी बच्चों की सूरत में आते रहना। लियो पियो कर बोल के बहुत उनको ऐसी प्यास लगी रहती है। वो वक्त में समंदर का पानी पी लेते हुए प्यास नहीं बुझती। नेक लोगों को है ना अल्लाह ताला उनके ऐसे मदद करते रहती है। गुनेगार लोगों को है ना वो उसका खारूरा जो है वो खारूरा दे डाल तक थे। अल्लाह हमारे सबकी हिफाजत फरमाए। जब आती तो जिब्रील इजराइल इस्लाम तो वो जालिम जो रहता है, जो इंतकाल वाले होने वाले रहती उनके पास आती, को क्या करती उनको अंगार का कोड़ा लाई रहती, अंगार का कोड़ा ले लगाती और बोलती देखो फर्स्ट आदमी इंतकाल होने के बाद ही खबर में नहीं उनका अजाब दिखाया जाता, सो दुनिया में दिखाती देखो अगर तुम्हें नेक काम करे होते तो देखो ये तुम्हारे वास्ते जन्नत करको बताती, गुनेगार है तो देखो तुम्हें है ना नेक काम नहीं करे, देखो ये तुम्हारे वास्ते जहन्नुम खबर की बताती। तो कान से ऐसे चीखा मारती, ऐसा ये करती, अगर दुनिया वाले, घर वाले, मोहल्ले वाले अगर उनकी एक आवाज़ सुन ले तो नींद भर कर सोते नहीं, लज्जत से पानी की प्यास को नहीं बुझाते। तो ऐसे वक्त पर क्या करती उनको कोड़न से, अंगार के कोड़न से उनको ज़रब लगाते रहती गते सुरोनियम पर ज़रब लगाते रहती और उनकी रूह को खींच को थोड़ी देर खड़ा डालती तकलीफ होने कर को। फिर गले कने से खींच को ले का को घुटने अंगूठे से खींच को घुटनों में खड़ा डालती, फिर घुटने से खड़ा को पिंजड़े में खड़ा डालती। तकलीफ की शिद्दत होने खड़ाते ले का को नाफ कने खड़ा डालती। ऐसी उनकी शिद्दत होती रहती है और अंगार के कोड़ों से ज़रब लगाते रहती। बाद ले का को हल्लाक के तक खड़ा को छोड़ा देंगे इन तकलीफ की होने कर को। तो उसके बाद ऐसा खींचती कहते जालिम रूह निकल कर को दूर का खींचती ना, ऐसा उनकी रूह इतनी तकलीफ करते जैसा कांटेदार टहनी पर बारीक मलमल का कपड़ा डाल को खींचने पर सारे उसके तागे के तार जाक लगे थे, वैसी तकलीफ होती है। वो बात तो खींचने के बाद वो रूह बाहर निकली तो इतनी गंदी बात होती है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इतनी गंदी बात होती है फरिश्ते पूरे दूर हो जाती कहते। तब रूह बाहर निकलने के बाद उससे आपको बोलते थे तेरा नाश हो, तू खुद भी हिलाक होगा, मुझे भी हिलाक कर दिया। तो नमाज में दीन के कामों में सुस्ती करता था और तू गुने के कामों में बुराई में तू जल्दी करता था कर को बोलती। तो फरिश्ते कोई ऊपर ले जाने के तैयार नहीं रहते। तो ले लग जाने के बाद बात क्या होता है उनसे मालूम हो जाता है ना खबर में ऐसा है बोल के। तो इसका गुनेगार की इतनी ख़राब ऐसी ये होती है, इंतकाल होता है तो उनको खबर में ले जाते वक्त इतना रोते रहती कहते मुझे भेज डाल रही ना, उसमें ऐसे अजाबा थी ना, ऐसा आग जल रही है ना, मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा इतना देखे ना, इतना तरसते तकते उनका रोना देखे तो सारी दुनिया मिलको नींद भर को सोएंगे नहीं कहते। ऐसा रहता है
जब वो उनको ले लेके जाको है ना खबर में क्या तकते नेक आदमी को फरिश्ते जाको सब जगह पूछती, मस्जिदा में पूछे तो बोलती है हो यहाँ नमाज पढ़ते थे, यहाँ जोहर की पढ़ते थे, इधर फजर की पढ़ते थे, ऐसा ऐसा करो पूरा बोलते रहती। कहते घर में तक शैतान घुटने जमा कर बैठे रहता है। तब 500 फरिश्तियों के साथ इजराइल सलाम आती, उनको देख ले को शैतान है ना मुंह छपा के चल जाता कहते, जाके ऐसा सर पकड़ के रोता कहते, उसकी फौज को बोलता कहते कहाँ चले गए थे, तुम्हें ये चलेगा ना एक जना हाथ से अल्लाह का नेक बंदा बन को कर को। तब इस्लाम उनके गले के नीचे जन्नत से लाया हुआ रुमाल रखती, ठंडक पहुंचते रहती। कहते बाद सरहाने सर पे हाथ फिराकर कलमा बैठ के पढ़ाती हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और सफ़ेद नफीस लिबास में आती और इतनी आसानी से उनकी रूह को निकालती, मस्के में से बाल निकले सर का, तब भी उनको इतनी तकलीफ होती। कहते जैसा मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा कहते तुम्हें मौत को कैसा पाया, तो टेम्पो बोलती कहते मैं ऐसा पाया कि एक जिंदा चिड़िया को पानी में गरम उबलते हुए तेल में डाल दी, ना उड़ सकरे ना मर सकरे करको मैं ऐसा पाया। अब मैं इतने साल होगी 70 साल होगी, अभी भी मेरी मौत की सख्ती इतनी तकलीफ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी हुई तो सबको क्या होंगे। तो उतनी आराम से निकालने के बाद भी मक्खी बैठी तो भी पहाड़ के जैसा तकलीफ होती कहते, वो भी मस्के में से बाल निकालती ना, ऐसा निकाल को भी तो गुनहगारों को कैसा होता है इंशाअल्लाह। इसलिए हमें आखिरत की फिक्र करेंगे, हमें एक दिन हमेशा की ज़िंदगी में जाना है, हमें कितने दिन हमें दुनिया में रहते हुए एक दिन हमें जाना है। इंशाअल्लाह हमें मौत को याद करेंगे, दिन में 5 दफ़ा याद करेंगे और हमें आखिरत की तो कोशिश करेंगे। हमें नमाज को जानकर हमें सीख कर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हमें कुरान शरीफ को भी जाकर सीख कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर नहीं आ रहा है तो हमें जाकर सीखेंगे, आ रहा है तो भी फिर भी हमें सही पढ़ेंगे और अल्लाह से हमें अल्लाह ने बचाकर ले जाने की हमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जो भी अल्लाह हम सबको दीन पर 100% अमल की तौफीक दो और हमें कुरान शरीफ को कसरत से पढ़ने की तौफीक दे और नमाज खुशू अली पढ़ने की अल्लाह हिदायत और तौफीक दे। अल्लाह हमें आपकी मदद के बगैर हमें कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप ही मदद करो कि अल्लाह हमें आपके फरमा बरदार बंदे बनकर आ जाए। ऐसी अल्लाह तो हमें आसान अता फरमा। अल्लाह हमें तमाम उम्मत मुस्लिमा हमें खैर भलाएं अता फरमा। अल्लाह ताला हमें तेरे हाथों से बनाए हुए बंदे ही अल्लाह ताला हमें कैसा आग में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुनिया की आग हमें थोड़ी सी हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ना थोड़ी सी भाप लगी तो हमें उसकी तकलीफ को नहीं संभाल सकते। अल्लाह ताला तू अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा अल्लाह जो भी सुन रही अल्लाह उनको अल्लाह हम सब को अल्लाह तेरे नेक बंदों में शामिल फरमा ले। अल्लाह जो भी सुन रही अल्लाह उन सब के तमाम अहले कबूल मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जो भी सुन रही अल्लाह ताला उनको नेक का काम करने की तौफीक हिदायत दे। अल्लाह जो भी सुन रही है अल्लाह उनकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करो। अल्लाह जो भी सुन रही है अल्लाह ताला उनको तमाम जायज़ हाजतों उम्मीदों को आफियत से पूरा करो। अल्लाह ताला ये जो भी सुन रही है अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह पाक अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले बना दे और सुन्नतों को हमें बड़ी से बड़ी सुन्नत को बड़ी बोल के नहीं छोड़ना, छोटी से छोटी सुन्नत को छोटी बोल के नहीं छोड़ना। हमारा खाना पीना सोना, हमारे कपड़े पहनना, पानी पीना, हमारी बातचीत सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो भी सुन रही है अल्लाह उनको बड़े से बड़े अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमा, जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। मेरे बहने भाई हैं जो भी देख रही हैं सुन रहे हैं अल्लाह करे दुआ कीजिए, आमीन बोलते रहिए। किसकी आमीन में क्या है मालूम नहीं, किसी एक अल्लाह के नेक बंदे की नेक वली की आमीन से अल्लाह हमारा बेड़ा पार कर देगा इंशाअल्लाह। ये जो भी सुन रही इसे अमानत समझकर 5-5, 10-10 लोगों तक पहुंचाइए इंशाअल्लाह। हम सब दीन पर चलकर अल्लाह के अहल अयाल बनकर चल जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको हज उम्रा के अल्लाह सआदतें नसीब फरमा।
اللہ ہم سب کے اللہ جائز حاجتوں کو پورا کر. آپ میرے بھائی بہنیں ہمارے لیے آپ کی دعا میں یاد رکھیے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیے. آمین.